Number 1, having a positive mental attitude. Yes, my friend, this is the number 1 quality which can make your personality a winning personality. How do you define attitude? Attitude combination है 3 things का, your thoughts, your feelings and your actions. ये तीनों चीज़ों को हम साथ में मिला के हम जो चीज़ बनती है, that is what we call as attitude. Having a winning attitude कि जो भी बाहर की सिचुएशन है, जो भी बाहर के circumstances है, but my attitude is going to be much more powerful to create those situations and circumstances, to change those situations and circumstances. That is what is called as a winning attitude. Simple example हम लेते हैं, कोविड हुआ, लॉकडाउन था, people with winning attitude became multi-millionaires, whereas people with losing attitude went flat broke. Winning attitude is the number 1 quality to make your personality a winning personality. Number 2, flexibility of the mind. Some people say it's my way or highway. बस कह दिया ना, बस कह दिया. हाँ, ऐसा नहीं होता है. Having the flexibility of the mind means कि आपके पास एक खुला दिमाग है. You are open to new ideas, new suggestions and new opinions. आप अपना डिसीजन अपने बेसिस पे ही लीजिए, बट एटलीस्ट हैव एन ओपन माइंड, बिकॉज इफ यू डोंट हैव एन ओपन माइंड कि यार मुझे ही सब कुछ पता है, माई वे इज द राइट वे, यू विल नेवर गोइंग टू गेट द थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. और कभी आपका जो ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे रहेगा वो किसी को नहीं दिखेगा, आपको तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, एंड दैट्स वेयर यू आर गोइंग टू स्टॉप योर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. तो हैविंग एन ओपन माइंड, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड is a very, very good quality to develop that winning personality. See, when most people are very rigid and stubborn, कि ये तो किसी की सुनता ही नहीं है यार, बस हमेशा अपनी मनमानी करता है, you are never going to have that winning personality. But हाँ, flexibility of the mind है कि चलो देखते हैं क्या आपका ओपिनियन है, सुन तो ले कि क्या सजेशन दे रहा है, and accordingly you then you take a decision कि क्या right है क्या wrong है. But not having that flexibility of the mind, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड ये नहीं कि आप दूसरों के ओपिनियन से अपने ओपिनियंस चेंज कर लो, अपने डिसीजंस चेंज कर लो ना. यू हैव एन ओपन माइंड, बट अल्टीमेटली यू डिसाइड कि ये मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है. सो यू हैव अ स्पाइन ऑफ योर ओन. दैट मीन्स यू आर नॉट बीइंग जस्ट जजमेंटल बाय अदर पीपल थिंग्स. यू अल्टीमेटली डिसाइड यूजिंग योर ओन decision making abilities. But having flexibility of the mind is going to make your personality winning personality. That's number 2. The third quality is sincerity of purpose. You got to be sincere कि यार ये मेरा लक्ष्य है, that's my goal and I'm really sincere. I work hard every single day. I work smart every single day towards that goal. Have you seen people कि जो पूरा दिन टाइम वेस्ट करते हैं ऑन सोशल मीडिया एंड जस्ट वाइलिंग अवे देयर टाइम, प्रिटेंड करते कि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, बट दे आर नॉट सिंसियर अबाउट देयर पर्पस. बट जब भी आप देखते हैं कि यार ये बंदा सीरियस है भाई, ये बंदा सही में कुछ ना कुछ करेगा, दैट स्टार्ट्स टू क्रिएट दैट पर्सनैलिटी विच इज़ अ विनिंग पर्सनैलिटी. द थर्ड क्वालिटी इज सिंसियरिटी ऑफ पर्पस. आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं मेरे गोल के पीछे रियली सिंसियर हूँ? And if yes, you are going to develop that winning personality. Number 4, promptness of decision. कभी देखा है आपने लोगों को कि यार डिसीजन लेते ही नहीं है, और जब भी आप उनके साथ में रहते हो आप बोलते हो यार डिसाइड करना है, यार क्या करना है, पिक्चर देखनी है कि नहीं देखनी है, पिज्ज़ा मंगाना है कि नहीं मंगाना है. यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस. People don't like those people who don't take decisions. I'm giving you very simple examples, but long term में जब भी big decisions के बात आती है, तभी people who are taking prompt decisions are really admired and liked. तो देखिए अपने आप में कि क्या मेरे में ये क्वालिटी है कि मैं can I be a decision maker in life, because ultimately your decisions will determine your destiny. Number 5, common courtesy on all occasions. सिंपल सी कर्टसी यूज़ करिए अपने व्यवहार में, जैसे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो आप, हाउ इज़ योर हेल्थ. मे बी समटाइम्स किसी की कोई बीमारी होती है, अभी कैसा ही घर में तबीयत कैसी है. सिंपल कर्टसी. मे बी किसी के लिए दरवाज़ा ओपन रखिए, एलिवेटर में हो तो आप पहले किसी को भेजिए, चलो आप पहले बाहर जाइए. सिंपल कॉमन कर्टसी. मे बी अगर कोई आप सबवे में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, काफ़ी टाइम से बैठे हो, आपकी सीट किसी और को दे दो, एक स्ट्रेंजर को पानी का ग्लास दे दो. सिंपल कॉमन कर्टसी can make a big thing to make your personality winning. The best part is ये common courtesy जो है ये बहुत common नहीं है. It is very uncommon now.
people are so busy being busy कि बस मेरा 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 मेरा, they have forgotten कि common courtesy जैसी कोई चीज़ है. But when you start to develop this common courtesy, you're going to differentiate yourself और आपकी personality बहुत winning हो जाएगी. That's the number 5th quality. It's the best part is ये common courtesy free है, इसका कोई चार्ज नहीं है. इट इज़ कम्प्लीटली फ्री. आज इसको तुरंत आप ही आज आजमा सकते हो एंड सी हाउ यू कैन डेवलप योर पर्सनैलिटी विच इज़ वेरी विनिंग. दैट्स द 5th क्वालिटी. नंबर 6, टैक्टफुलनेस ऑफ स्पीच. दैट्स द 6th क्वालिटी. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि क्या मैं कौन सी चीज़ें कब बोलनी, दैट इज़ व्हाट यू मीन बाय टैक्टफुलनेस ऑफ स्पीच. हाउ मेनी टाइम्स हमने देखा है कि यार ये चीज़ मुझे नहीं बोलनी थी लेकिन मैंने भूल से बोल दी. दैट इज़ नॉट टैक्टफुलनेस ऑफ स्पीच. बट आप देखिए लीडर्स को देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को देखिए, यू टेक ऑल द पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, यू टेक ऑल द बिग फिल्म स्टार्स, अमिताभ बच्चन साहब को देख लीजिए, एंड दे आर सो टैक्टफुलनेस कि ये चीज़ मुझे अब बोलनी है, अब नहीं बोलनी है. दैट इज़ वेन यू स्टार्ट टू डेवलप अ विनिंग पर्सनैलिटी. Understand this. When you start to develop that tactfulness of speech, people are going to like you because आपको पता है कि ये चीज़ इस समय बोलनी ज़रूरी है, ये चीज़ इस समय बोलनी नहीं ज़रूरी है. That's going to make your personality winning. Number 7, a pleasant tone of voice. हाँ, क्या आप जब भी आप बात करते हो किसी से तो आपकी आवाज़ प्लेजेंट है, किसी के कानों में बहुत ऐसी रफ लग रही है, then it's not going to be like a pleasant tone of voice. और अभी इस समय जहाँ पे ऑनलाइन का ज़माना है, where we are having this online sessions and Zoom sessions, आपकी टोन ऑफ वॉइस की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी को आप बोलते हो हेलो, बोलते हो हेलो, बोलो क्या हुआ, बोला. That's not having a pleasant tone of voice. But जैसे हम आज बात कर रहे हैं आपके साथ में, we are having a very pleasant tone of voice. The tone of voice can be really going up at a high pitch, or you can go down and really be somber. Hello, how are you feeling today? So that's where you use a pleasant tone of voice. और जैसे आपकी tone of voice pleasant बन जाती है, people would like to listen to you and they're going to make your personality winning and you're going to attract people using your pleasant tone of voice. तो आपकी टोन ऑफ वॉइस को चेक करिए, आप भी अच्छी टोन ऑफ वॉइस कर सकते हैं. विद सम प्रैक्टिस, विद सम एक्सरसाइज, यू कैन डेवलप अ प्लेजेंट टोन ऑफ वॉइस. नंबर 8, द हैबिट ऑफ स्माइलिंग व्हाइल स्पीकिंग. यस माय फ्रेंड्स, ये भी एक हैबिट है और जब ये हैबिट आ जाएगी, यू सी इट्स सच अ इजी वे टू बिकम अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी. नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, आई एम नॉट लाफिंग, आई एम नॉट शोइंग माय टीथ, आई एम जस्ट हैविंग अ प्लेजेंट टोन ऑफ वॉइस and I'm having a smile on my face. And when you have a smile on your face, the personality becomes it becomes charming. You tend to listen to that particular person. You want to be around that particular person. आपको वो लोग बहुत अच्छे लगेंगे. और जो भी समझो, अगर आपको कोई बुरी चीज़ भी बोलनी है, मे बी क्रिटिसाइज भी करना है, but you have a pleasant tone of voice and have a smile on your face, that's where it's going to make your personality very, very pleasing. For example, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, I'm having a smile on my face. And it's so very much subtle, but that smile on your face can make your personality very pleasing. तो स्टार्ट करिए, डेवलप करिए, अपने आप को आईने में देखिए कि कैसे आपको एक pleasant facial expression, a smile on your face can really start to get this. That is the 8th quality, having a smile on your face when you speak. Number 9, having a pleasant facial expression. कि जब भी आप किसी से बात करते हो, क्या बहुत टेंशन में हो, क्या आप बहुत वरी में हो, एंग्जाइटी में हो, और जब भी आप बात करते हो सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, क्या टेंशन है, बहुत एंग्जाइटी है, दैट्स नॉट गोइंग टू मेक योर पर्सनैलिटी विच इज़ वेरी विनिंग. बट व्हेन यू स्पीक, एक सिंपल सा एक प्लेजेंट फेशियल एक्सप्रेशन है, एंड यू विल सी एनी ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन. ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा बुरा नहीं चल रहा है, कुछ अनचाई मनचाई बात नहीं हो रही है 100%, but definitely they don't show up on their face. They have a pleasant facial expression, and that's where their personality becomes becomes like a winning personality. You can also develop this with controlling your emotions and not letting your emotions to show on your face. You have a very pleasant facial expression, and that is going to make your personality winning. Try it out. With practice, you're going to get this 9th quality, having a pleasant facial expression. Number 10, tolerance. Tolerance का मतलब क्या? कि समझो कोई चीज़ है, यू डू इट इन मॉडरेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मे बी पिक्चर देखना, सोशल मीडिया पे जाना, सब कुछ चीज़ें ज़रूरी है फॉर आवर एंटरटेनमेंट. बट आर यू हैविंग सम टॉलरेंस? दैट मीन्स यू आर डूइंग इन मॉडरेशन ऑल दिस थिंग्स.
आई हैव सीन पीपल जो एकदम एक्सट्रीम पे जाते हैं एंड दैट्स वेयर देयर पर्सनैलिटी बिकम्स नॉन विनिंग. बट जब भी आप इसको टॉलरेंस रखते हो कि नहीं यार, आई मीन लेट्स नॉट डू इट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल, यू कीप इट इन मॉडरेशन. इसको आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर में भी यूज़ कर सकते हो. जब भी आपने किसी की टांग खींचना स्टार्ट किया, आप कोई अलग लेवल पे चले जाएंगे. जब भी आप बिल्कुल भी उनके इमोशंस की आप कदर नहीं करेंगे, यू आर नॉट बीइंग टॉलरेंट, यू आर नेवर गोइंग टू गेट दैट विनिंग पर्सनैलिटी. लेकिन कोई चीज़ मॉडरेशन में आपने की, दैट्स वेयर यू गोइंग टू स्टार्ट टू डेवलप अ विनिंग पर्सनैलिटी. नंबर 11, फ्रैंकनेस इन मैनर एंड स्पीच. के यूल सी दैट कुछ लोग पाखंडी होते हैं. आई मीन सम इट्स सो एविडेंट कि जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और वो जो बोल रहे हैं वो उस हिसाब से इंटेंशन भी इनका कुछ गलत है. क्या आपको लगता है कि नहीं यार इसका कुछ हिडन एजेंडा है? फ्रैंक लोग ऐसे नहीं होते. फ्रैंकनेस इन मैनर एंड स्पीच मीन्स कि जो हम बोल रहे हैं वी मीन इट एंड वी डोंट हैव एनी हिडन एजेंडा. और जैसे लोग आपको उस पर्सनैलिटी से कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं ये बंदा स्ट्रेट बोलता है, फ्रैंक बोलता है, एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्ट्रेट एंड रूड बट रियली इंटेंडिंग कि यार आई रियली मीन इट, आई केयर फॉर इट. आई एम नॉट सेइंग कि मुझे कुछ मेरे लिए कुछ चाहिए, बट आई केयर फॉर यू एंड आई एम फ्रैंकली गिविंग एन ओपिनियन. वो फ्रैंकनेस लोग बहुत पसंद करेंगे. फ्रैंकनेस अपने व्यवहार में एंड फ्रैंकनेस अपने बोलने में. स्टार्ट टू डेवलप दिस क्वालिटी एंड यू विल हैव दिस विनिंग पर्सनैलिटी. नंबर 12, अ कीन सेंस ऑफ ह्यूमर. हाँ, आई मीन अपने आप को हंसाना, किसी और को हंसाना, दैट्स वेयर यू डेवलप दिस सेंस ऑफ ह्यूमर. People love people who like to have this sense of humor. I mean, you'll get bored अगर मेरे पास कोई sense of humor नहीं होगा in this particular videos. मेरे programs and seminars में people love to come in and enjoy because I add some sense of humor. Sense of humor कैसा होना चाहिए? It should be sincere. It should be having some tolerance कि यार एक हद तक टांग खींचिए. It should be having courtesy कि यार एकदम उसको रुला मत दीजिए. It should be also having tact. That means के tact का मतलब for example आपके स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप है, ओनली बॉयज़ का ग्रुप है, और वहाँ पे कोई जोक आया एंड दैट एडल्ट जोक यू हैव फॉरवर्डेड इट टू योर फैमिली ग्रुप, बहुत प्रॉब्लम होगा. तो टैक्ट का मतलब कि कौन सा जोक कब क्रैक करना, दैट्स ऑल्सो गोइंग टू गेट योर पर्सनैलिटी विनिंग. एंड बाय द वे राइट नाउ आई यूज्ड माई सेंस ऑफ ह्यूमर. दैट्स अ 12th क्वालिटी ऑफ हैविंग अ विनिंग पर्सनैलिटी. नंबर 13, फेथ इन इन्फिनिट इंटेलिजेंस. बहुत बढ़िया क्वालिटी है टू मेक योर पर्सनैलिटी विनिंग. व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनिट इंटेलिजेंस? क्या मानते हो कि सारे ब्रह्मांड में एक शक्ति है, एक सुपर पावर है? Maybe you can call it God, that higher force, that one source. Maybe you have this power of your subconscious mind. Maybe you believe in your gut feeling, your sixth sense, your intuition. हाँ, think and grow rich में we talk about all of this in this particular case. तो अगर आपको इन चीज़ों में विश्वास है, you're going to develop a winning personality because आपकी personality में ये powers आ जाएंगे, that kindness, that joy, that love, that compassion आएगा with the qualities of the infinite intelligence. To develop this quality and really start to develop that faith in infinite intelligence, that's going to make your personality winning. Number 14, a keen sense of justice. Yes, my friends, you got to have that justice, that yeah, this is true and this is fair. ये right है, ये wrong है. People love people having this fair sense of justice. People don't appreciate कि यार ये तो बहुत unfair है, ये biased है. I mean for example, boss का बेटा है, okay, बीवी का भाई है. That's not going to give you these qualities of a winning personality. But when you develop this keen sense of justice of what is true and fair, of reward and returns and penalties and all of that will be based on a sense of justice, that's going to develop a winning personality. Number 15, appropriate use of words. आपके words create your world. That's what it is said. तो कौन सा word कब बोलना? For example, गाली कब बोलनी, कब नहीं बोलनी? आई वुड सजेस्ट कभी भी नहीं बोलनी, पर लेकिन ज़रूरत पड़े कि बोलनी ही है तो कब बोलनी और क्या रीज़न से बोलनी, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स. क्रिटिसिज्म करना, कैसे करना, कौन से वर्ड्स यूज करने, दैट्स ऑल्सो गोइंग टू मेक योर पर्सनैलिटी विनिंग. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, बेहतरीन फीडबैक देना फॉर इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू यूज सम वर्ड्स लाइक दिस, डिप्रेशन. मुझे बहुत डिप्रेशन है, I am too much depressed. You have seen kids talking about this. Depression है, I mean depression, exam है. Well, depression उनको क्या है पता ही नहीं है. It's a very common word to use. I'm saying ये depression word निकालना चाहिए आपके जहन से. Remove this from your dictionary because आप ये word को समझेंगे नहीं और just you start using this word, that's not going to make your personality winning.
तो ये रहे टॉप 15 qualities out of these 30 qualities to make you a winning personality. This is part 1 of this particular series. Wait for part 2 where I discuss quality number 60 to quality number 30. On वो समझेंगे आप, you're going to really becoming that winning personality to attract everything that you want to have in your life. So let's get ready to watch part number 2 of this particular series.